Siddhanta Adhirika Vairagya, first chapter, the spiritual masters, shloka number 4. Anarpita charinchirad karunaya avatirna kalo samarpayitu munyato jalam rasam svabhakti shriyam Hari Purana Sundara Nidhi Kadamba Sandipita Sada Hridaya Kandare Smuratuva Sachinandana Anarpita Charinchira Karunaya Avatirna Kalau Samarpayitu Munnato Jala Rasam Svabhakti Shriyam Hari Purana Sundara Nidhi Kadamba Sandipita Sada Hridaya Kandare Smuratuva Sachinandana Anarpita Charinchira Karunaya Avatirna Kalau Samarpayitu Munnato Jala Rasam Svabhakti Shriyam Hari Purana Sundara Nidhi Kadamba Sandipita Sada Hridaya Kandare Smuratuva Sachinandana Anarpita Charinchira Karunaya Avatirna Kalo Samarpayitu Munnato Jala Rasam Svabhakti Shriyam Hari Purana Sundara Nidhi Kadamba Sandipita Sada Hridaya Kandare Smuratuva Sachinandana Anarpita Charinchira Karunaya Avatirna Kalo Samarpayitu Munnato Jala Rasam Svabhakti Shriyam Hari Purana Sundara Nidhi Kadamba Sandipita Sada Hridaya Kandare Smuratuva Sachinandana Anarpita Charinchira Karunaya Avatirna Kalo Samarpayitu Munnato Jala Rasam Svabhakti Shriyam Hari Purana Sundara Nidhi Kadamba Sandipita Sada Hridaya Kandare Smuratuva Sachinandana Anarpita, not bestowed. Chari, having been formerly. Chira, for a long time. Karunaya, by cosmos mercy. Avatirna, descended. Kalau, in the age of Kali. Samarpayitu, to bestow. Unnata, elevated. Ujjvala Rasam, the conjugal below. Svabhakti, of his own service. Shriyam, the treasure.
Hari, the Supreme Lord, Purata, than gold, Sundara, more beautiful, Diti, of splendor, Kadamba, with a multitude, Sandipita, lighted up, Sada, always, Hridaya Kantare, in the cavity of the heart, Skuradu, let him be manifest. Va, your Sachinandana, the son of Mother Sachi. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. May the Supreme Lord, who is known as the son of Srimati Sachi Devi, be transcendently situated in the innermost chambers of your heart, resplendent with the radiance of molten gold. He has appeared in the age of Kali by His causeless mercy to bestow what no incarnation has ever offered before, the most sublime and radiant mellow of devotional service, the mellow of conjugal love. Hare Krishna. Hare Krishna. तो पहले मेरे सबको आज का क्लास में स्वागत है। और तो याद है हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? याद है पिछले क्लास का कुछ पॉइंट्स? पिछले क्लास में हमने देखा था कि कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु का जो एक्सॉल्टेड पोजीशन है उसके बारे में बता रहे हैं। तो वो और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण भगवान ही है। जो परम तत्व है वो 3 प्रकार में माने जाता है, और वो तीनों प्रकार का जो परम तत्व है वो मेरा स्वामी महाप्रभु ही है, वो एस्टैब्लिश कर रहा था। जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म है वो अपने शरीर का तेज है, और जो परमात्मा बन के जो तीसरा पुरुषावतार है, क्षीरोदय साई विष्णु सबका हृदय के अंदर बैठा है, वो अपना विभूति का एक अंश है। और जो भगवान है वो षड ऐश्वर्यों से पूर्ण वो भगवान, और कोई नहीं, वो स्वयं महाप्रभु ही है। और जो न कृष्णा चैतन्य जगति परतत्व परम है, जो कृष्ण चैतन्य के ना ऊपर है ना समान है और कोई नहीं है, वही है परम तत्व, परम सत्य वही है। यही हमने देखा था। तो अभी कविराज गोस्वामी पर बता रहे कि महाप्रभु का आशीर्वाद के लिए ये दोहरा रहे हैं। तो बता रहे कि स्फुरतुवा सच्चिदानंद, सदा हृदय कंदरे स्फुरतुवा सच्चिदानंद, कि क्या आशीर्वाद मांग रहे हैं? जो हमेशा के लिए सदा सच्चिदानंद, जो चैतन्य महाप्रभु हमारा हृदय के अंदर आगे बैठ जाए। तो यही प्रार्थना कर रहे हैं। और इसमें कविराज गोस्वामी पर महाप्रभु क्यों अवतार लिया उसका कुछ बाह्य कारणों के बारे में बता रहे हैं। महाप्रभु अवतार लेने के लिए 2 तरीके के रीजन है। एक तो इंटरनल रीजन है और एक एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य कारण है महाप्रभु आने के। तो ये बाह्य कारणों के कारण क्या क्या है वो इस श्लोक में कविराज गोस्वामी पर बता रहे हैं।
और ये यही श्लोक का पूरा विस्तरण है अभी तीसरा अध्याय। ये एक ही श्लोक का पूरा इलाबरेटली एक्सप्लेन कर रहे हैं कविराज गोस्वामी का तीसरा अध्याय है। ठीक है, तो हम इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम तीसरा अध्याय जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अभी महाप्रभु के बारे में हमको जानना है। तो श्रील प्रभुपाद मायापुर में 1975 में एक लेक्चर दिया था ये श्लोक के ऊपर। तो श्रील प्रभुपाद जी पहले तो मैं सोचा कि हाँ प्रभुपाद जी अभी महाप्रभु के बारे में बताएंगे। तो प्रभुपाद जी ने पहले ही शुरू किया रूप गोस्वामी से, क्योंकि रूप गोस्वामी का हम प्रणाम अभी गाया था। क्या था? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप तथा महे ददाति स्वपदान्तिकम्। तो इसका मतलब ये है कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जो महाप्रभु के जो भी इच्छाएं हैं वो सारे इच्छाएं यहाँ भूतले स्थापितम, कौन यहाँ ये भूमंडल में सब स्थापित किया? वो श्रील रूप गोस्वामी है। और यही रूप गोस्वामी मुझे अपने चरणों में कब आश्रय लेंगे, यही है इसका मतलब। ठीक है, तो रूप गोस्वामी का चरण का आश्रय हम लेना चाहते हैं। तो महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या था? तो महाप्रभु क्या चाहते थे? क्योंकि नरोत्तमदास ठाकुर ये बता रहे कि चाय गोसार जबे ब्रजे कोइलो भास राधा कृष्ण नित्य लीला कुलीला प्रकाश। जब ये जो चाय गोसार, जो 6 गोस्वामी लोग हैं हमारा श्री गोस्वामी लोग, जब ब्रजे कोइलो भास, जब ये लोग ब्रज में रहते थे तब ये लोग क्या किया? राधा कृष्ण नित्य लीला कुलीला प्रकाश, जो भी राधा कृष्ण का जो भी लीलाएं हैं ये सब हमको प्रकाश किया, मतलब हमको दिखाया। कौन? ये जो गोस्वामी लोग, उन लोग के द्वारा ही हमको राधा कृष्ण का लीलाएं समझ सकते हैं। क्योंकि वे देखो उन लोगों ने क्या क्या ग्रंथ लिखा है, विदग्धा माधव, ललिता माधव, माधुर्य कथंजलि, गोपाल चंद्र, सब में जो वृंदावन में राधा कृष्ण का लीलाएं इसका बारे में भी डिटेल डिस्क्रिप्शन है। और जो ओरिजिनल गोलोक धाम है उसके बारे में भी वर्णन किया है जो गोस्वामी का। और ये सब महाप्रभु चाहते थे। महाप्रभु इसीलिए इन लोग को भेजा था उधर, ताकि जो वृंदावन है, जो लीलास्थली है भगवान और राधा रानी का, वो सब अभी ये हो गया। तो वो थोड़ा सब निकाल के उधर सब साफ करके सब जन को देखने के लिए लायक ऐसे कुछ बनाने के लिए इन लोग को भेजा था। ये सब रूप गोस्वामी और ये गोस्वामी लोग द्वारा ये सब पूर्ण किया। जो भी महाप्रभु का इच्छा था ये सब इन लोगों ने ही पूर्ण किया था। तो ये हम जो अभी 6 गोस्वामी लोग के बारे में सुन रहे हैं, तो मैं बोला था कि पहले क्लास में एक्चुअली 8 गोस्वामी लोग थे। एक तो हमारा कविराज गोस्वामी था और एक लोकनाथ गोस्वामी और एक था कि गोगर्भ गोस्वामी रखे। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जाने से पहले ही महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को वहाँ भेजा था। और उसके बाद गोगर्भ गोस्वामी जो गदाधर पंडित के शिष्य है उनको भी भेजा था, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी और गोगर्भ गोस्वामी दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। तो जब लोकनाथ गोस्वामी गए तो गोगर्भ गोस्वामी भी उनके पास वृंदावन गए थे। तो ये लोग पहले आए था, पर लोकनाथ गोस्वामी ऐसे क्वेश्चन किया कि उनका नाम कहीं लिखना नहीं, किसी को भी जानना नहीं, मैं तो इतना पतित हूँ। ऐसे ही हम्बल स्टेट में था, इसलिए कि हमको लोकनाथ गोस्वामी के बारे में कोई वर्णन नहीं मिला। अभी देखो हमारा जो गुरु परंपरा हम देखेंगे, जो भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, तो ऐसे दिया है कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, जो माधवेंद्रपुरी से, मतलब भगवान से शुरू हो रहा है, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, अद्वैताचार्य, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर लिखा है, और उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और उसके बाद जगन्नाथ दास बाबा जी और भक्ति ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्तिनाथ ठाकुर, ऐसे ही दिया है ना। नरोत्तम, बलदेव, बलदेव विद्याभूषण भी है बीच में। हाँ, तो एक्चुअली हम देखेंगे तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी का
शिष्य लिखा है नरोत्तम दास ठाकुर। एक्चुअली नरोत्तम दास ठाकुर का गुरु कौन है? लोकनाथ गोस्वामी है। और ये लोकनाथ गोस्वामी पता है कैसे है कि जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को कुछ डाउट है तो ये लोग जाके पूछता था लोकनाथ गोस्वामी को। तो उन लोगों से सबसे सीनियर है लोकनाथ गोस्वामी। तो क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी का इच्छा ऐसे था कि उनका नाम कहीं पे नहीं लिखना है, तो और कविराज गोस्वामी को भी ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया था लोकनाथ गोस्वामी कि मेरा नाम कहीं पे भी मत लिखना। इसीलिए कविराज गोस्वामी बाद में 6 गोस्वामियों का नाम लिखा, ये जो 10 गोस्वामी लोग का नाम को मिला। तो अभी जो भी महाप्रभु की इच्छा था ये सब पूर्ण हुआ था गोस्वामी के द्वारा। तो हम जब ये गोस्वामी लोग का आश्रय लेंगे तभी हमको महाप्रभु क्या है वो समझ सकता है। ऐसे ही उसमें नरोत्तम दास ठाकुर और भी गा रहे हैं, चाय गोसाई करी शरण दासवर पद रेणु प्रपंचग्रास। उसके बाद का कौन सा था? चाय गोसाई करी चरण बंद जहाँ वेते विघ्न नाश अभिष्टा पूरण। तो ये बता रहे कि जो चाय गोसाई करी चरण बंदन, उन लोग का चरण बंदन मैं करता हूँ। और क्यों करता हूँ कि उन लोग के अगर चरण बंदन किया और उन लोग का आशीर्वाद मिल गया तो क्या होता है, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्टा पूरण, जो भी विघ्न हमारा जो भक्ति का पद में आता है वो सब निकल जाएगा। और क्या हमारा जो भी इच्छाएं हैं अभिष्टा पूर्ण, जो हमारा जो भी इच्छा है वो सब पूरी करने की इतना पावरफुल है वो स्वामी लोग। तो उन लोग का आश्रय लेना हमारा, हम ऐसे नहीं सोचना कि हाँ मैं जब स्वाध्याय करके ना पूरा ये सब कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं। हम आचार्य के थ्रू जाना है, हमारा जो गुरु महाराज की कृपा लेना है, प्रभुपाद का और गोस्वामी पाद का। ऐसे हम जाएंगे तो हमको अच्छी तरह से ये जो टॉपिक हम जब डिस्कस करेंगे ये सब समझ में आएंगे। उसी में ही नरोत्तम दास ठाकुर ये बता रहे कि मोरा पंचग्रास जो 5-4 सब्सटेंस है, जो भक्ति में हम ये सेवा का 5 मैट्रिक्स को बता रहे हैं कि यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय, ये सब हम मुझे मेरा गोस्वामी पाद का चरण धूलि है। दासवारा पाद रेणु मोर पंचग्रास, उन लोग का पाद कमल का एक चरण रेणु, वही मेरा ये जो पंच जो भक्ति में ये जो मैं करना चाहता हूँ वो सब ये 5 ये उन लोग का चरण धूलि है बता रहा है। क्या क्या? यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय, ये सब मुझे जो गोस्वामी पाद का चरण धूलि है, ये जो गोस्वामी लोग का चरण धूलि है बता रहा है। तो इतना गोस्वामी लोग का हमारा आचार्य लोग ऐसे वर्णन कर रहे हैं। और अगर गोस्वामी लोग का आशीर्वाद है तो वो महाप्रभु का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। क्योंकि जैसे ही महाप्रभु चंद्रचरण में बता रहे कि भगवान को जानना बहुत मुश्किल है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राहिनिन्द्रे, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राहिनिन्द्रे। भगवान का नाम गुण लीला महिमा ये सब हम कैसे भी हमारा इंद्रियों के द्वारा हम कैसे भी ग्राही नहीं कर सकते। तो हम कैसे क्या कर सकते हैं? सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्मृत्यता। हमको क्या करना है कि हम सेवा करना है। कैसे? जिह्वा से शुरू करके जो भी इंद्रिय है वो सारा भगवान का सेवा में लगाना है। तब क्या कैसे मिलेगा हमको? स्वयमेव स्मृत्यता। तब हम आपको कुछ ऐसे नहीं, अरे ये भी नहीं मिला नहीं मिला ऐसे नहीं सोचना है, वो सेवा और भी करना है। तब भगवान जब हमको भगवान खुश हो जाएगी, हाँ ठीक है ये कर रहा है, तो भगवान आशीर्वाद करके हमको स्वयमेव जो हमारा हृदय में भगवान ये बता रहा है ना, भगवान तेषामेवानुकंपार्थम हम ज्ञान जगतम आश्रयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भासते। मैं ये जीव से इतना अनुकंपा करके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उन लोगों का हृदय में ज्ञानदीप बन के जल रहा हूँ और वहाँ का जो अज्ञान का अंधकार है वो सब भगवान मिटाता है। ये तो भगवद गीता में कहते हैं। तो
ऐसे ही भगवान का कृपा हमको कैसे मिलना है, जैसे हम उसके लिए कोई सेपरेटली हम डेवलप नहीं करना है। हम जो भी सेवा कर रहे हैं वो अच्छे से सिंसियरली करो तो ऑटोमेटिकली भगवान का सेवा आ जाएगा, सेवा भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो हम अभी देखेंगे तो जो भक्ति का नव अंग है, जो श्रद्धा से शुरू होता है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। यही है हमको जो अचीव करना है, प्रेम। ठीक है, तो क्या हमारा ही स्वाध्याय से नहीं तो हमारा ही मेहनत से ये प्रेम हमको मिल जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं मिल जाएगा। हमारा प्रयत्न से हमको इतना ही कर सकते हैं। क्या कितना कर सकते हैं? श्रद्धा, जो विश्वास है भगवान पे और ग्रंथों पे और आचार्य लोग पे, ये विश्वास हम कर सकते हैं। और साधु संग, तो भक्तों के संग ले सकते हैं और भजन करें, जो हमारा भजन है, जो जप करना है, जप करते हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आप जो भी सेवा करते हैं ये सब हम कर सकते हैं। और अनंत निवृत्ति, जो भी हमको दिख रहा है, मतलब हाँ ये मेरा भक्ति का मार्ग में ये मुझे एक ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है, मैं ऐसा नहीं जाएगा, थोड़ा डिटोर लेगा। तो ऐसे ही तो हमको जो भी हमारा भक्तिपथ मार्ग में जो भी ब्लॉक्स आ रहा है वो हमको सोच के हम ऐसे ऐसे रिटर्न मार के हमको जा सकते हैं आगे, वो भी करना है। अनंत निवृत्ति और निष्ठा, निष्ठा ये है कि ये देखो, एक दिन मैं 16 माला जप किया, अगला दिन 8, अगला दिन 4, अगला दिन 2 और अगला दिन मैं 64 अनुसरण किया और उसके बाद 32। ऐसा नहीं होना चाहिए। 16 माला जब करो तो हर दिन 16 माला जब करें, निष्ठा वही है, स्टेडीनेस। हमको जो भी सेवा कर रहे हैं वो हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है, इतना ही हम कर सकते हैं, निष्ठा तक ही हम कर सकते हैं। उसके आगे जो है रुचि, ये भगवान का आशीर्वाद से हमको मिलता है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनको श्रील प्रभुपाद जी बताया था कि वो नाम जप का महिमा बता रहा था। तो एक शिष्य ने पूछा था कि तो प्रभुपाद जी, महाराज, स्वामी जी आपको तो कृष्ण प्रेम मिला होगा, आपको तो नाम रुचि मिला होगा। तो प्रभुपाद जी बता रहा था कि मुझे तो 20 साल लगा वो नाम रुचि मिलने के लिए। अगर प्रभुपाद जी 20 साल लगा तो हमारा तो 20 साल लगेगा कैसे भी। तो ये 20 सालों तक प्रभुपाद जी ने निष्ठा से अपना सेवा और भजन क्रिया ऐसे ही कंटिन्यू किया था और उसके बाद उनको नाम रुचि मिला। तो इसमें हम यही समझना है कि हमारा जो भी सेवा है वो हम स्टेडीली हमको करना है, वो हर दिन कभी भी कम नहीं करना है, ज़्यादा करना है, ठीक है। ऐसे ही हम करते रहो, तब एक दिन भगवान, हाँ ठीक है, ये मतलब तो बहुत मुश्किल कर, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मैं थोड़ा आशीर्वाद करेगा कि भगवान रुचि देगा, तब रुचि, उसके बाद आसक्ति आएगा और उसके बाद भाव मिल जाएगा। हमारा जो स्थायी भाव है वो हमारा गुरु महाराज की, गुरु के अनुग्रह से, आशीर्वाद से हमको हमारा जो ओरिजिनल भाव क्या था, हम वृंदावन में जब रहते थे तो हम वृंदावन में क्या भाव में भगवान को सेवा किया था वो अपने गुरु हमको बताएंगे। हाँ ये है तेरा भाव, इसी में तो सख्य भाव में होंगे, कभी कुछ लोग वात्सल्य भाव में रहेंगे, माधुर्य रस में होंगे। तो वो रस क्या है अपना गुरु हमको बताएंगे। तब उसके बाद वही उसी भाव में हम भगवान का अष्टकालीय लीला का स्मरण करते रहना और बाद में तुमको प्रेम, कृष्ण प्रेम है वो हमको मिल जाएगा। तो कैसे भी हमको भगवान का आशीर्वाद चाहिए, तो भगवान का आशीर्वाद के लिए हमको हमारे आचार्य लोग का शरण लेना है, क्योंकि भगवान ही बता रहा था, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदि रामापि सिद्धानां कश्चित् मामेति तत्त्वतः। अभी सहस्र मतलब मनुष्याणाम सहस्रेषु, बहुत सारे सहस्र लोग हैं, मतलब हजारों लोग हैं, वो लोग उसमें से कुछ कम लोग, बहुत कम लोग ही जो सत्य क्या है वो जानने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, आपने सोचो कि 1000 में 10 जन कोशिश किया, मतलब जानने के लिए कोशिश किया, पर वो जाना नहीं। अगर उसी से ही
एक या दो को ही परम सत्य का ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि वो ऐसे स्टेडली उन लोग को हाँ उसका पीछे ही जाएगा और ये समझ में आएगा। तो ऐसा इतना आसान काम नहीं है भगवान को समझना। तो अगर भगवान को समझना है तो आचार्यों का आशीर्वाद चाहिए। अभी महाप्रभु का यहाँ देखेंगे तो महाप्रभु इधर यहाँ क्या बता रहे हैं, अनार्पित शरीर। अनार्पित मतलब अर्पित किया मतलब हमने हमको दिया है, अनार्पित मतलब कभी भी नहीं दिया है। शरीर मतलब हमारा जो चरित्र जो भी हिस्ट्री में ऐसे कुछ चीज हमको कभी तक नहीं दिया है, कभी नहीं मिला है। क्या है वो? करुणया अवतीर्ण करो। करुणा, जो करुणा है ना हमको इतना इतना है तो 1000 चतुर्युग है ब्रह्मा का एक कल्प, ठीक है, एक डे 12 आवर्स 1000 चतुर्युग है, और एक दूसरा 12 घंटा है रात का टाइम है, एक और 1000 चतुर्युग का टाइम है। तो एक दिन कंप्लीट होने के लिए 24 आवर्स कंप्लीट होने के लिए 2000 चतुर्युग का टाइम चाहिए। तो ये 2000 चतुर्युग का पहले मतलब वहां तक हमको कहीं ऐसे करुणा कभी भी नहीं मिला है। हाँ, तो इसके बारे में गुरु महाराज एक बार कर रहा था, उनकी क्लास में बता रहा था कि हर ब्रह्मा जी के कल्प में डे टाइम में भगवान कृष्ण एक बार आते हैं, ठीक है, पर महाप्रभु ऐसा नहीं है। अगर उनका मर्जी है तो ही आएगा वो, ऐसा नहीं है कि उनको आना जरूरी है, नहीं, उनको मर्जी है, अगर ठीक है मुझे लग रहा है ठीक है आना है तो ही महाप्रभु आता है। तो देखो अगर महाप्रभु नहीं आए तो हमारा क्या हालत होगा, यदि गौर ना होते तो वजह घोष बता रहे थे कि अगर महाप्रभु नहीं आए तो हमारा तो क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ तो हम तो ऐसे ही भटकते रहेंगे होंगे। भगवान आया था पर भगवान कभी भी उनका भक्ति करना कैसे करना, भक्ति का ये प्रेम रस के बारे में कुछ भगवान ने कहीं पे भी नहीं कहा। भगवान क्या कहा था, मेरा बारे में मुझे जानने के लिए हजारों लोगों से 10 लोग ये कोशिश करेंगे, उनमें से 1 या 2 मुझे कोई मिलेगा। और महाप्रभु का अगर केस लिया तो जो 1000 लोग हैं वो 1000 लोग को भी महाप्रभु करना दे देंगे, अगर वो कोशिश नहीं किया तो भी करना दे देंगे। इतना कारुण्य है महाप्रभु का, जो कारुण्य का इतना सीमा ही नहीं है महाप्रभु का। तो ये कल एक ऐसे ये हुआ, मैं तो शॉक हो गया। महाप्रभु का करुणा के बारे में ना ये कोई सीमा नहीं, ऐसे हम शास्त्र में पढ़ते हैं, पर मुझे ना प्रैक्टिकली वो एग्जाम्पल मिला। कल हमारा घर पे एक फोटो प्रिंट करना था, वो महाप्रभु नहीं आएंगे, महाप्रभु और पंचतत्व, हाँ वो लोग सब कीर्तन करते जा रहा था, एक नगर संकीर्तन का एक फोटो है, ठीक है। तो वो फोटो हमने एक A3 शीट में प्रिंट करने के लिए स्टूडियो में गया था, और भी हमको वो स्वामी लोग का भी फोटो प्रिंट करना था, इसलिए हम गया, मैं स्टूडियो में गया और बताया कि हाँ ठीक है, जो फोटो है वो सॉफ्ट कॉपी भेजा, उन्होंने एक प्रिंट करके दिया, ठीक है आप देखो ये चेक करो ठीक है कि नहीं। हाँ तो मैं देखा सही है, अच्छा है, बहुत अच्छा आया है। और उन्होंने एक सैम्पल A4 शीट में भी गोस्वामी का एक फोटो भी प्रिंट करके दिया, ये देखो सही है कि नहीं प्रिंट, हाँ ये सही है। तब मैंने देखा कि मेरा आजू बाजू में है ना बहुत लोग कर रहा है, मैं तो थोड़ा डर गया क्योंकि ये तो महाप्रभु का जो सारा तिलक तक लगा के एक फोटो है, तो ये लोग तो पता नहीं पाकिस्तानी लोग हैं, मतलब कुछ बोलेगा कि नहीं पता नहीं। तो मैं ऐसे कि वो A4 शीट का दूसरा सेट ब्लैंक था, तो मैं ऐसे ही कवर करके वो फोटो को रखा था, ठीक है, ताकि कोई ना देखे कि कुछ मुझे मत कुछ ना बोले, क्योंकि मैं तो गैलरी में गया था तो मुझे तो कोई किसी का पहचान भी नहीं होता, तो इसलिए मैं ऐसे रखा था। तो ये जो स्टूडियो वाला है उन्होंने ये गोस्वामी लोग का फोटो भी खींच के वो प्रिंट करके मेरे पास आया और मुझे दिया। तो मैं ये फोटो देख रहा था, ये बंदा ने क्या कि ये A4 शीट है वहाँ से निकाल के वो लेके गया। मैं तो बात ये कुछ काम करने के लिए कुछ भी नहीं, तो मैं ऐसे ही मेरा हाथ में ऐसे ही रखा था महाप्रभु और गोस्वामी लोग का फोटो। तो अचानक एक मेरा साइड में बंदा खड़ा था, वो बता रहा कि ये फोटो आपको कहाँ से मिला।
डाउनलोड करके प्रिंट करने के लिए। अच्छा इसको कितना, वो तो 4.5 MB बोला। अच्छा 4.5 MB, हाँ ठीक है। हाँ भैया मुझे भी एक फोटो चाहिए मेरा घर पे रखने के लिए। शौक हो गया। अभी देखो फोटो से ही महाप्रभु घर में लगे, तो महाप्रभु उनका भी कर गया। वो तो चिट्टगांव से था, तो बांग्लादेश में चिट्टगांव से था, तो पहले हम चट्टग्राम कहते थे, वही वहां से था ये आदमी, और ये हिंदू था। तो वो महाप्रभु का फोटो देखते ही उनको पसंद आया और बोला कि हाँ मुझे भी एक कॉपी चाहिए, तो दे दो उनका। वो बोला कि हाँ मेरा घर पे एक रखना है, मेरा बीवी उनको भी बहुत पसंद आएगा, आप थोड़ा दे दो। और मुझे पूछ रहे कि इधर कोई मंदिर है रिक्शा? हाँ मैं बोला कि हाँ है, क्योंकि बंगाल का सब लोग जानते हैं कि ये तो ऐसा कुछ चीज़ है, वो उन लोग का कल्चर नहीं, उन लोग का ब्लड नहीं है। तो पर हम जो हमारा जो ऐसा नहीं, हमको तो इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। तो उन लोगों को सब पता था, तो मुझे बोले हाँ, मैं बोला कि हाँ इधर है, 2 मंदिर है, आप कभी भी आ सकते हैं। उनकी नहीं, फ्राइडे को भी ड्यूटी है। बोला कि हित में एक सत्संग है, उधर भी आ सकता है। बोला कि हाँ ठीक है मैं देखता हूँ करके वो फोटो लेके गए। और जो दूसरा बंदा इधर था वो एक पाकिस्तानी था, तो वो अब भैया वो ये देखो वो देखो करके उसका भी कुछ अर्जित करना था। तो मैं जो फोटो दिया था वो प्रिंट करना है और वो कट करना था, वो इसलिए वो उसमें बिजी था, एक ही बंदा था स्टूडियो में। तो मेरे हाथ में जो गोस्वामी का और पंचदत्ता का फोटो है, तो ये बता स्टूडियो वाला बोले कि अरे नहीं इनका तो काम थोड़ा खत्म कर देता हूँ। तो ये मुझे देखा ऐसे ही, तो ये फोटो सब देखा तो बोले हाँ ठीक है भगवान का फोटो है ना, ठीक है आप कीजिए मैं वेट करता हूँ। अरे तो मैं तो शौक हो गया, भगवान क्या भगवान देखो भगवान ऐसे सोचो, फोटो से कितना करुणा दे रहे, तो अगर खुद उधर था तो कैसे कितना करुणा देते होंगे। महाप्रभु तो इतना कारुण्य का कोई सीमा ही नहीं है महाप्रभु का, ठीक है। तो वही करुणया अवतीर्ण करो, जो ये कलिय काल में महाप्रभु सिर्फ एंड सिर्फ करुणा देने के लिए महाप्रभु अवतार लिया था, जो ऐसे पहले कोई आया ही नहीं था। तो महाप्रभु क्यों आया था? समर्पित उन्नतोज्ज्वल रसम स्वभक्ति से। महाप्रभु क्या देने के लिए आया था? तो उन्नत उज्ज्वल रस क्या है? कृष्ण प्रेम। वो ही कृष्ण प्रेम हम सबको देने के लिए महाप्रभु आया था। तो ये महाप्रभु ये बता रहा था कि क्या है कृष्ण प्रेम, वो कैसे हमको करना चाहिए, कैसे मिलेगा ये सब। तो महाप्रभु उसी का एग्जाम्पल दे रहा था कि जो वृंदावन के गोपी लोग हैं उन लोग के जैसा हम भगवान का आराधना करना है, उनका सेवा करना है, तभी हमको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो ये बात है ना, श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करके एक आचार्य था हमारा गौड़ीय परंपरा में, उन्होंने ही पहले हमारा गौड़ीय परंपरा में भागवतम का टीका लिखा था। गौड़ीय परंपरा में बहुत सारा है, पहले लिखा था, पर गौड़ीय परंपरा में ही श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भागवतम श्रीमद् भागवतम का कमेंट्री लिखा था। उसका नाम है श्री चैतन्य मत मंजूषा करके। तो उसी में ही पहला श्लोक उन्होंने लिखा था कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्याकाचित उपासना व्रजवतु वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेम कुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इतम तत्प्राधरा महापरा। तो ये बता रहा था कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय। हरे कृष्ण। श्री राधा गोपाल कृष्ण भगवान की, राधा सुभद्रा मैया की, श्री गोविंद थाय की, श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। ओम तो सुरेंद्र ठाकुर कह रहा था कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, हमको जो भी आराधना करना है एकदम ऊंचे सबसे श्रेष्ठ आराधना करना है, और वो किसका करना है? ब्रजेश तनय, जो ब्रज का राजा है, नंद बाबा का बेटा जो कृष्ण है, उनका आराधना करना है। और वो आराधना कैसे करना है? रम्याकाचित उपासना व्रजवतु, जो ब्रज के गोपी लोग ने किया था ऐसे ही हमको आराधना करना है। और हमको वो कैसे, आपको कैसे समझ में आएगा? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम, उसका जो प्रमाण है श्रीमद् भागवतम है, जो अमृत पुराण है, उसमें कोई मलिन नहीं है, वो प्योर है।
तो वो भागवत से हमको मिल जाएगा। वो भागवत में क्या है, प्रेम पूर्ण, आपको कृष्ण प्रेम जरूर मिल जाएगा, उसमें कृष्ण प्रेम ही है, पर हमको वो ऐसे हम स्वाध्याय करेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। तो आचार्य लोग से सुनेंगे तो वो कृष्ण प्रेम हमको महसूस कर जाएगा। और ये बात कौन बता रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु मतम। महाप्रभु का मत ये है कि आप ऐसे ऐसे करना है, आराधना करना है भगवान का। वो आराधना कैसे करना है? गोपी लोग जैसे। और ये कहाँ मिलेगा आपको? ये भागवत में मिलेगा। ये महाप्रभु का मत है और इसका अलावा और कोई आधार नहीं है, ये एक ही आधार। तो महाप्रभु यही देने के लिए आया था, भगवान का कृष्ण प्रेम। और वो कैसे करना है? जो गोपी लोग के जैसा। वो कृष्ण प्रेम क्या है? वो उन्नत उज्जवल रस है। ये तो हमको कभी भी नहीं मिलेगा, उतना रस हमको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये तो आप वो चाहिए जो भौतिक लोग में जगत में कुछ भी नहीं है उसका तुलन करने के लिए। तो महाप्रभु, ये जो महाप्रभु का करना के बारे में बताएंगे तो महाप्रभु महाप्रकाश लीला किया, ठीक है। तो महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में ये महाप्रकाश लीला किया। तो वो महाप्रकाश लीला में तो महाप्रभु स्वयं बता रहा था कि हाँ मैं ही हूँ भगवान। वो क्या किया कि श्रीवास ठाकुर का अंतर में गया और भगवान को निकाल के महाप्रभु उधर स्वयं विराजमान हो गए कि बोला हाँ ठीक है मेरा अभिषेक करो। स्वयं भगवान है बताने के लिए महाप्रभु ऐसे बोला, क्योंकि वो टाइम पे सबको दिखा रहा था कि मैं ही खुद भगवान हूँ करके। तो वो टाइम पे श्रीवास ठाकुर का ये जो डीस को क्या बोलते हैं, डीस मतलब बहन का बेटी है ना, बहन का या मदर या सिस्टर का बेटी है, नतीजा बेटा बेटी बेटी भतीजी। हाँ ओके। तो श्रीवास ठाकुर का भतीजी डीस है, नारायणी करके एक बच्चे थे, तो वो 4 साल के थे, ठीक है। तो महाप्रभु तो महाप्रकाश लीला में तो स्वयं भगवान का भाव में आके महाप्रभु एक ये नारायणी को देखा, तो 4 साल का लड़की है, उनको देखा तो बताया कि महाप्रभु बोला कि चैंट कृष्णा से क्राई फॉर कृष्णा, भगवान का कृष्ण का नाम जप करना और नाम जप करते करते भगवान के लिए रोना, ठीक है। ऐसे ही आदेश दिया, और वो किसको दे रहे? 4 साल के लड़की को दे रहे महाप्रभु। पर महाप्रभु का आदेश ऐसे ही था कि बाहर में आपको देखेंगे तो बहुत ये गंभीर आदेश था, पर वो आदेश से ही महाप्रभु नारायणी को कृष्ण प्रेम दिया। और क्या हो गया कि ये जो नारायणी है, वो नारायणी को कृष्ण लीला में क्या संबंध है कि नारायणी एक्चुअली किलिंबिका करके एक सखी था। वो भगवान का नंदभवन में भगवान यशोदा मैया के साथ एक अंबिका करके एक नर्स है, तो भगवान का सब देखभाल करते थे। तो अंबिका क्या करता था कि जो भी भगवान का के छोड़ता है, मतलब जो भी भगवान का रेमिनेंस है, ये सब अंबिका खाते हैं, ठीक है। और ये अंबिका का बहन है किलिंबिका, और ये अंबिका है श्रीवास ठाकुर का पत्नी मालिनी, और उसी के घर में किलिंबिका जो नारायणी आया है, ठीक है। तो नारायणी को महाप्रभु ऐसे ही कृष्ण प्रेम दिया। तो क्या हो गया कि नारायणी थोड़ा बड़ा हो गया और उसके बाद शादी हो गया। शादी हुआ था वैकुंठनाथ विप्रा करके बहुत बड़े भक्त थे, और वो लोग ने शादी के बाद अपना अपने पति के घर गया, तो वो सिलेक्ट में था बांग्लादेश में, तो वहाँ गया। पर उनका एक बेटा जन्म हुआ, तो जन्म होने का पहले ही वैकुंठनाथ विप्रा का देहांत हो गया। तो अभी नारायणी और बेटा है अकेला था, तो वो लोग ने क्या किया कि वापस श्रीवास ठाकुर का घर पे आ गया, ठीक है। और तब ये जो बेटा है, बेटा को नित्यानंद प्रभु आगे आशीर्वाद दिया, और नित्यानंद प्रभु ने उनको अपना शिष्य भी बना दिया और आदेश दिया कि महाप्रभु का चरित्र लिखने का, और वो था श्री चैतन्य भागवत। वो बेटे का नाम था वृंदावन दास ठाकुर, वही बनता। अभी देखो महाप्रभु का कृपा नारायणी को मिला, नारायणी भी बहुत बड़े भक्त बन गए,
और उनका बेटा वृंदावन दास ठाकुर बन गए, और वृंदावन दास ठाकुर को नित्यानंद प्रभु ने अपना शिष्य बन गया और उनको आदेश दिया कि महाप्रभु का चरित्र लिखा। उन्होंने चैतन्य भागवत में लिखा। अभी देखो महाप्रभु को करुणा का कोई सीमा ही नहीं, इसीलिए बता रहे। ये वृंदावन दास ठाकुर भी व्यासदेव जी का अवतार है, और कुसुम पीला करके भगवान का एक सखा है, वो दोनों मिलके अवतार लिया है वृंदावन दास ठाकुर का। ठीक है, तो यही महाप्रभु का जो करुणा का कोई सीमा ही नहीं है। तो देखो मैं जैसे बताया कहीं फोटो से ही महाप्रभु इतना करुणा रह जाता, तो अगर आमने सामने होगा तो कितना करुणा हमको मिल जाएगी। और उसके बाद बता रहा है कि सदर जो सुंदर हरि पुरट सुंदर द्वितीय कदम बसंती, महाप्रभु का जो ब्यूटी है महाप्रभु का, हरि पुरट सुंदर, जो मोल्टन गोल्ड है ना, जो पिघला हुआ जो सोना, उससे भी अधिक बहुत सुंदर था महाप्रभु का जो गोल्डन कॉम्प्लेक्स महाप्रभु का वर्क, और इतना सुंदर था कि है ना ऐसा कोई उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं था। तो इसके बारे में गौरंग लीलामृता करके विश्वनाथ चतुर्पाद ने एक ग्रंथ लिखा है। तो इसमें क्या है कि हम तो सुना है कि भगवान कृष्ण और राधा का अष्टकालीय लीला, जो दिन का 8 हिस्सा है, उसमें भगवान क्या क्या लीला करते हैं। ठीक है, एक एक भगवान मतलब एक दिन को 8 हिस्सों में भाग लिया, तो उस एक 8 हिस्सा में भगवान क्या क्या लीला करते हैं। तो जब सुबह उठता है ब्रह्म मुहूर्त से सुबह 3 बजे से 7 बजे तक, 7 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे से दोपहर तक, और दोपहर से शाम तक, ऐसे 8 हिस्सों में भगवान क्या क्या लीला करते हैं हमको आचार्य लोग ने, गोस्वामी लोगों ने लिखा है। पर महाप्रभु का अष्टकालीय लीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लिखा है, उनका ग्रंथ का नाम है गौरंग लीलामृता। उसमें महाप्रभु दिन में क्या क्या लीला करते हैं उसका बारे में वर्णन किया है। तो सुबह सुबह ही महाप्रभु ब्रह्म मुहूर्त में महाप्रभु का घर पे महाप्रभु को उठाने जा रहा है कौन, सच्ची माता। ठीक है, तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो गए, तो सच्ची माता पहले विष्णुप्रिया माता को बुला रहे हैं, विष्णुप्रिया उठो उठो, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, उठो और नहा लो, महाप्रभु को गौरव महाप्रभु को वो बनाना है, तो जल्दी जल्दी उठो, स्नान करो। ऐसे करके विष्णुप्रिया माता को उठा रहे हैं। तो विष्णुप्रिया माता उठ के जा रहे हैं, और सच्ची माता आगे जा रहे हैं महाप्रभु का कमरे में, और महाप्रभु उसमें वो कमरे का अंदर एक कॉट है। कॉट को क्या बोलते हैं? कॉट मतलब ये जो बेड है ना, कॉट, वुडन बेड। हाँ, कॉट, ठीक है, जो भी है वुडन कॉट है। ठीक है, वो ऐसे बनाया था कि वो पूरा सफेद कलर का है, और एक इधर उधर सोने का रख भी दिया है। ऐसे बहुत सुंदर कोट था, वो वुडन कोट था, और उसमें जो तकिया और ये जो बेड है ना, वो अच्छे से सफेद कपड़ा से वो कवर करके रखा था। उसी में महाप्रभु सो रहे हैं। तो महाप्रभु ऐसे सो रहा था कि हम कैसे ऐसे ही डिसेंटली सोता है ना, तो महाप्रभु ऐसे दिखता है, ऐसे ही सो रहा था महाप्रभु, क्योंकि वो ऐसे लग रहा था कि महाप्रभु तो बहुत थक गए हैं, ऐसे बहुत थक गए थे, ऐसे सोता है। हम अगर बहुत थक गए तो हम कैसे, हमको कोई ऐसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसे ही सोता है। तो ऐसे ही महाप्रभु सो रहा था। ठीक है, और महाप्रभु ऐसे सो रहा था कि एक सोना का पर्वत ऐसे रखा है, ऐसे ही रहा था। तो सच्ची माता को ऐसे ही लग रहा था। तो कमरा में आने के बाद सच्ची माता देख रहा था महाप्रभु को, ऐसे ही महाप्रभु को देखते ही वहां रह गया सच्ची माता एक मोमेंट के लिए। ठीक है, हाँ, बस बाद में होश आया, और ठीक है महाप्रभु को बुलाना है। महाप्रभु को तो इतना सुंदर रूप था कि महाप्रभु का जो कड़ी है ऐसे वो सब ऐसे ही स्प्रेड करके ऐसे ही बेड में था। तो वो देख के सच्ची माता को भी इतना खुशी आ गया, और महाप्रभु को सच्ची माता जाके बुलाया। सच्ची माता गौरंगा निमाई, तो अभी ब्रह्म मुहूर्त आ गया है, तुम्हारे लिए बहुत जन वेट कर रहे हैं, तुम आओ और सबको आशीर्वाद दे दो करके सच्ची माता बुलाना। जैसे ही हम कौशल्या माता श्री राम भगवान को बुलाता है ना, वो क्या था,
कौसल्या सुप्रता सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सरसा पूर्या कर्तव्यम मंगलम गुरु। ये एक्चुअली कौशल्या माता ने, ये तो विश्वामित्र महर्षि ने कहा था शायद, विश्वामित्र महर्षि या मुझे याद नहीं है कौन सा महर्षि ने गाया था, लेकिन बता रहे हैं कि हे श्री राम भगवान उठो, अभी ये हो गया और कर्तव्य मंगल करो, आपका जो भी मंगल कार्य आपको जो करना है वो करने के लिए सब लोग वेट कर, आप उठिए, ऐसे करके भगवान को बुला रहे हैं। और भगवान यशोदा मैया भी भगवान को, कृष्ण को ऐसे ही बुलाते थे, और वही सच्ची माता महाप्रभु को भी बुला रहे हैं। तो उसके बारे में भक्ति ठाकुर ने अरुणोदय कीर्तन करके लिखा था, उसमें बता रहे कि द्विजमणि गौरा आमनि जागे बकत सामुह लोहिया साते गेला नगर ब्रजे। तो बता रहे कि उतिलो आरुणो पूर्व आगे, तो जो ईस्ट साइड है, पूर्व दिशा में उदय किया कौन? अरुण, मतलब सूर्य भगवान उदय हो गया, तो द्विजामणि गौरा आमन जगह, और महाप्रभु भी उठ गए, और भक्त समूह लोहिया सत्य, और जो भी भक्त संघ है उनको साथ लेके महाप्रभु ने क्या किया? गेला नागर पर ऐसे ही नगर ग्राम में महाप्रभु संकीर्तन करते ऐसे गाना शुरू किया, यही बताना ठाकुर। तो ऐसे ही महाप्रभु को सच्ची माता उठाया और बताया कि हाँ तुम्हारा उठो, तुम्हारे लिए बहुत जन वेट कर रहे हैं, आप उठिए, ऐसे बताया कि महाप्रभु को उठाया। और महाप्रभु तो ऐसे ही थोड़ा आलस्य में था, क्योंकि वो तो, क्योंकि क्या हो गया कि उसका प्रयोग क्या था कि रात को महाप्रभु क्या करता था, श्रीवासन में पूरा रात भर कीर्तन करता था, कीर्तन करता था, नाचता था, ये सब करते करते ना रात को तक बहुत थक गए, ऐसे ही उधर सुबह आके सो रहा था वहां, इसलिए महाप्रभु इतना थक गया था। तो हम सोचेंगे अरे ये रात को क्या करता है महाप्रभु दिन भर कीर्तन करता था। तो ऐसे ही हम इधर भी हमको देख सकते हैं, जो बहुत बंगाली भक्त लोग हैं वो लोग रात को इतना भयानक कीर्तन करते हैं, हम ये लोग रात को क्यों करते हैं, क्यों गए? तो महाप्रभु ऐसे किया था, श्रीवासा रात भर कीर्तन करता था महाप्रभु। तो महाप्रभु कीर्तन करते ऐसे कर गया था, इसलिए ऐसे सो रहा था। तो सच्ची बात उठाया और महाप्रभु थोड़ा उठ के मन में थोड़ा ऐसे बढ़ गया, और थोड़ा एक जगह पे सच्ची माता ने थोड़ा पानी और बाल्टी रखा था, तो उन्होंने चेहरा साफ किया और ये जो ब्रश किया, और ये जो टंग क्लीनर है ना, टंग स्क्रबर से ऐसे ऐसे नीचे 3 बार ऐसे अपना रसना भी साफ किया। ये सब विश्वास ठाकुर इतना डिटेल बता रहा है, हम लोग सोचे यार कौन ये सब टंग क्लीनर, भगवान भी यूज करते थे। और विश्वास चक्रपाल ने राधारानी के बारे में भी ऐसे बताया था, राधारानी को गोल्डन टंग क्लीनर था राधारानी का, उससे राधारानी ऐसे करके ऐसे ही नीचे का ये इस मोशन में, ऐसा नहीं कि तू ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ही 3-4 बार ऐसे ही करता था, ऐसे टंग क्लीन करता था राधारानी। तो महाप्रभु भी ऐसे टंग क्लीन किया, और उसके बाद जो सुरधनी जो गंगा है उधर जाके नहाया महाप्रभु, और नहा के महाप्रभु आया और वेशभूषा बदल गया और घर का सामने आया। तो सब लोग रेडी था, बाकी सब लोग भी स्नान सब करके महाप्रभु का दर्शन लेने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, जो मुरारी गुप्ता बदादर पंडित सब लोग उधर आया था। और महाप्रभु सीधा के उधर थोड़ा ऊंची जगह पर बैठ गया और महाप्रभु शुरू किया भगवान का गुणगान करने के। महाप्रभु भागवत का वर्णन, मतलब जो भगवान नंदवान ने उठ के भगवान क्या क्या लीला करते थे वो महाप्रभु ऐसे ही बताना शुरू किया। तो ऐसा है कि ना बहुत सारे जन बैठा है और थोड़ा ऊंची जगह पे महाप्रभु बैठा है, ठीक है। और जब वो अर्ली मॉर्निंग है, तो अर्ली मॉर्निंग तो ये जो सूर्य का किरण होता है वो सब इतना सूथिंग होता है ना, थोड़ा हमको ऐसे ही सूर्य का किरण लेना है सुबह सुबह, तो दोपहर का तो जलेगा तो जल जाएगा, और सुबह का तो इतना सूथिंग सनराइज है। तो महाप्रभु का ये महाप्रभु का शरीर पर वही किरण आ रहा था
और तो ये लोग है ना, सब लोग महाप्रभु का सुंदरता देख के है ना ऐसे ही मोहित होके ऐसे ही बैठा था ये लोग। तो महाप्रभु तो ऐसे ही भगवान का कथा बता रहे और वो कथा बताते ही महाप्रभु भी और खुश हो रहा था और महाप्रभु का सौंदर्य और भी बढ़ रहा था। तो ये लोग है ना ऐसे ही अवस्था थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ कह रहा था कि वो कान से भी अमृत ले रहा था, आंख से भी अमृत ले रहा था और सारी इंद्रियों से अमृत ही अमृत ये लोग पा रहा था। कितना सुंदर है भगवान का शरीर। ये इधर बता रहे कि हरि पुरट सुंदर तिथि कदम पर का, और बता रहे कि ये जो महाप्रभु है ये हमारा हृदय के अंदर सदा रह जाए। इसलिए ऐसे ही आशीर्वाद कविराज गोसाई पर महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ को है ना महाप्रभु क्यों अवतार लिया, तो वो जो बाहरी कारणों का इधर क्या क्या आपको अभी समझ में आ गया। तो क्या क्या रीजन है इसमें, अभी हमको एक रीजन बता सकते हैं महाप्रभु क्यों आया। ये हमने चर्चा किया था, वही महाप्रभु क्यों आया था, क्या देने के लिए आया था, एटलीस्ट है तो चलो भगवान को कृष्ण प्रेम देने के लिए आया था, ये एक रीजन है। और एक रीजन था कि जब अद्वैताचार्य ने बुलाया महाप्रभु को, तो वो अद्वैताचार्य का जो बुलावा है वो सच करने के लिए भी महाप्रभु आया था। और महाप्रभु युग धर्म, जो कलिकाल का युग धर्म है संगीत नृत्य, वो भी एस्टैब्लिश करने के लिए महाप्रभु आया। और जो पहले से ही एक प्रेडिक्शन था कि सत्ययुग में रेड कलर का, द्वापर युग में व्हाइट कलर का, सॉरी ग्रीन कलर का, ये व्हाइट कलर का, और कलयुग में येलो कलर का अवतार लेकर करके पहले से ही प्रेडिक्शन था। जो बागल ने देखा व्यास महर्षि ने, कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम सांगो गंगास्त्र भाषणम जितने संकीर्तन प्राय ये चंदी सुमेध। तो ऐसे ही पहले से ही प्रेडिक्शन था, तो वो सब प्रेडिक्शन सही करना है ना, इसीलिए भी महाप्रभु आया था। ये सब एक्सटर्नल रीजन, ये सब हम डिटेली हम तीसरा अध्याय में हम देख पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ रुक रहा हूँ, ठीक है। हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो अगला श्लोक में हम अभी जो बाह्य कारण सुने हैं, आंतरिक कारण जो महाप्रभु क्यों आया थे उसका इंटरनल रीजन हम आने वाले दो श्लोकों में हम देखेंगे। हरे कृष्ण। चैतन्य सिद्धांत की जय, श्रीदास गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण। दास प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद